ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا، اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ سمینہ اس روز بھی کالج نہیں گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سبزی گوشت وغیرہ لینے کے لیے چلی گئی۔ شارق وہ ناول لے کر بیٹھ گیا جسے وہ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سمینہ واپس آئی تو اخبار بھی لے آئی تھی۔ فیصل آباد سے کوئی ڈھنگ کا اخبار شائع نہیں ہوا تھا۔ 2-3 جو اخبار شائع ہوتے بھی تھے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تمام بڑے اخبارات لاہور سے ہی آتے تھے اور سمینہ جو اخبار لے کر آئی تھی وہ بھی لاہور کا ہی تھا۔ شارق نے ناول رکھ دیا اور سمینہ سے اخبار لے کر دیکھنے لگا۔ آخری صفحے پر 2 کالمی سرخی دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا۔ ڈی ایس پی کے قاتل کا سراغ مل گیا۔ شارق وہ خبر پڑھنے لگا۔ یہ خبر پولیس کے ایک ترجمان کے حوالے سے شائع ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ لاہور کے ایک ڈی ایس پی کو ذاتی دشمنی کی بنا پر پہلے اغوا کیا گیا اور کئی روز کے بعد اسے مردہ سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا گیا، لیکن ڈی ایس پی زندہ تھا جسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اسی رات ملزم نے ڈاکٹر کا بھیس بدل کر بے ہوش ڈی ایس پی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس ترجمان نے یہ بھی بتایا تھا کہ ملزم ہسپتال سے فرار ہونے کے بعد کافی ہاؤس کے سامنے ایک رکشے پر بیٹھ کر چبرجی گیا تھا۔ رکشہ ڈرائیور کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق پولیس نے ایک ایسے شخص کا پتہ چلا لیا ہے جس کا تعلق منشیات فروشوں کے ایک گروہ سے ہے۔ پولیس اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ ملزم کو 1 آدھ دن میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ شارق یہ خبر پڑھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ پولیس کی تفتیش اس حد تک درست تھی کہ وہ ہسپتال سے فرار ہونے کے بعد کافی ہاؤس کے سامنے سے ایک رکشے پر بیٹھ کر چبرجی گیا تھا۔ رکشے والے نے جو حلیہ بتایا تھا وہ کسی حد تک مختلف تھا، لیکن پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ قاتل چبرجی کے آس پاس ہی کا رہنے والا تھا، اور ہو سکتا ہے پولیس اس حلیے کے مطابق اس علاقے میں اسے تلاش کر رہی ہو۔ لیکن شارق مطمئن تھا کہ اس علاقے میں کوئی شخص اسے نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ عام طور پر رات ہی کو اس مکان میں آیا کرتا تھا اور وہاں رہنے والے بہت کم لوگوں سے اس کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ رکشہ ڈرائیور کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق محلے والے اسے شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ پولیس کی یہ تحقیق بھی درست تھی کہ ڈی ایس پی کے قاتل کا تعلق منشیات فروشوں کے کسی گروہ سے تھا۔ پولیس تفتیش یقیناً اسی رخ پر کر رہی تھی۔ ایسے منشیات فروشوں کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہوں گی جنہیں ماضی میں اس ڈی ایس پی کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچا ہوگا۔ شارق کے لیے یہ بات بہرحال باعث تشویش ضرور تھی کہ اگر پولیس چھانگا تک پہنچ گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا تھا، لیکن چھانگا کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ اس روز شام کو شارق پیپلز کالونی پہنچ گیا۔ رحمانیہ مسجد کے قریب اسے سلمان ایڈوکیٹ کے بہنوئی کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے مکان کی نگرانی کرتا رہا۔ 8 بجے کے قریب ایک آدمی کو مکان سے نکلتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سلمان ایڈوکیٹ تھا۔ اس نے حلیہ بدلنے کے لیے اگرچہ داڑھی رکھ لی تھی، لیکن شارق کو اسے شناخت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ سلمان ایڈوکیٹ گھر سے نکل کر مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا ڈی گراؤنڈ کی طرف آ گیا۔ یہ انگریزی حروف ڈی کی طرح ایک وسیع و عریض پارک تھا۔ اس کے ایک طرف خط مستقیم کی طرح بالکل سیدھی سڑک تھی جو زیادہ تر ویران رہتی تھی۔ نصف دائرے کی شکل کی دوسری سڑک کے ساتھ ساتھ رہائشی اور کمرشل عمارتیں تھیں۔ ان عمارتوں میں سڑک کے رخ پر دکانوں کی وجہ سے بہت بارونق شاپنگ سینٹر بن گیا تھا۔ شام سے لے کر رات 10 بجے تک یہاں اچھی خاصی رونق رہتی تھی۔ یہاں 2-3 اچھے ریسٹورانٹ بھی تھے۔ ریسٹورانٹ والوں نے اپنے سامنے خوبصورت لان بنا رکھے تھے۔ یہاں شام ہوتے ہی میزیں اور کرسیاں ڈال دی جاتی۔ سلمان ایڈوکیٹ بھی ایک ایسے ہی ریسٹورانٹ کے سامنے لان میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ پھر وہ ایک میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور آدمی وہاں آ گیا۔ ان دونوں نے ہاتھ ملایا اور وہ آدمی بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی بھی سلمان کی طرح 45 اور 50 کے درمیان کا رہا ہوگا۔ سلمان نے ویٹر کو بلا کر چائے کے لیے کہا۔ شارق کچھ دیر تک لان کے باہر کھڑا رہا، پھر وہ بھی آگے آ کر ان کے قریب ہی ایک میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو اشارے سے چائے کے لیے کہہ دیا۔ چائے کے دوران سلمان ایڈوکیٹ اور دوسرا آدمی باتیں کرتے رہے۔ شارق کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ سلمان روزانہ شام کو یہیں آ کر بیٹھا کرتا تھا اور اس آدمی سے غالباً یہیں پر اس کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا، جھگڑا تو سارا جائیداد کا ہے،
लड़की की चूंकि शादी हो चुकी है और उसके भाई उसे जायदाद में से हिस्सा देने को तैयार नहीं है। सलमान ने कहा, ये तो कोई बात ना हुई। लड़की शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, वो अपने बाप की विरासत में हकदार है। हाँ, अगर वो भाइयों के हक में अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाए तो अलग बात है। बसूरत दीगर वो कानूनी तौर पर अपना हिस्सा वसूल कर सकती है। शरई और मुल्की कानून ने हर मामले में औरत को पूरा तहफ्फुज दिया है। दूसरे आदमी ने कहा, क्या यह बेहतर ना होगा कि कल मैं उसके शौहर को तुम्हारे पास भेज दूं, तुम उससे बात कर लेना। सलमान बोला, तुम कल उसे अपने साथ ही ले आना। वो शख्स बोला, कल मैं दफ्तर के काम से लाहौर जा रहा हूँ, मेरी वापसी परसों शाम तक होगी। कल इसी वक्त लड़की का शौहर यहाँ आ जाएगा, वो तुम्हें जानता है, मुनासिब समझो तो उसके साथ चले जाना। उसका घर दरबार गौसिया के करीब है, लड़की से भी बात कर लेना, तफसील से सब कुछ मालूम हो जाएगा। सलमान ने कहा, ठीक है, मैं कल उसका इंतजार करूंगा। और फिर वो दूसरे मौजुआत पर बातें करने लगे। शारिक उठ गया, अब उसे वहां बैठने की जरूरत नहीं थी। उसकी बातें सुनने के बाद शारिक ने मंसूबा बना लिया था और इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए उसे 24 घंटे इंतजार करना था। सलमान एडवोकेट ने शारिक को नहीं देखा था, वो उसकी पुश्त की तरफ बैठा हुआ था और अगर वो उसे देख भी लेता तो दाढ़ी की वजह से उसे पहचान नहीं सकता था। दाढ़ी से शारिक की सूरत बड़ी हद तक तब्दील हो गई थी और फिर सलमान तो शायद ये सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ शारिक से उसका आमना सामना हो जाएगा। शारिक जब समीना के घर वापस पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। समीना ने उसके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया था। ये जानते हुए भी कि शारिक एक जराइम पेशा आदमी है, उसकी वजह से उसे जिल्लत और रुसवाई भी उठाना पड़ी थी। वो शारिक की तरफ झुकती चली जा रही थी। दिल के मामलात शायद ऐसे ही होते हैं, जज्बात गालिब आ जाते हैं, ज़हन माऊफ हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं और इंसान दिल की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। खाना खाने के बाद वो देर तक बातें करते रहे और बिलाखिर शारिक असल मतलब पर आ गया। वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बर्बादी की असल वजह एक वकील है। उसने मेरे माँ बाप को कत्ल करवाया था, पुलिस से साजबाज करके मुझे एक लंबे अरसे के लिए जेल भिजवा दिया था और बाद में उसने मेरे मकान को जलाकर राख कर डाला और मुझे ही आतिशजनी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। समीना ने सर हिलाया, बोली, हाँ मुझे याद है। शारिक बोला, मेरी रिहाई के बाद अपने उन मजमूम मकासद में नाकाम होकर मुझे देख लेने के बाद वो वकील अपनी जान के खौफ से रूपोश हो गया था। थोड़ा ही अरसा पहले मुझे पता चला कि वो फैसलाबाद में है और आज मैंने उसे तलाश कर लिया। समीना ने उसे घूरा, बोली, क्या मतलब, क्या तुमने? शारिक ने उसकी बात काट दी, बोला, हाँ समीना, मैंने अहद कर रखा है कि जब तक अपने माँ बाप के कातिलों और अपना घर बर्बाद करने वालों से इंतकाम नहीं लूंगा उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। समीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी, बोली, शारिक, क्या तुम इन ख्यालात को जहन से नहीं निकाल सकते? अभी तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, क्या तुम जिंदगी भर यूं ही भटकते रहोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो, साफ सुथरी जिंदगी जिसमें खुलूस हो और चाहतें? शारिक बोला, मैं चाहूं भी तो ऐसा रास्ता नहीं बदल सकता समीना। मैं जहां भी जाऊंगा ये बुराइयां मेरा पीछा करती रहेंगी और फिर मैं वो रात कैसे भूल सकता हूं जब मेरे माँ बाप को मेरी नजरों के सामने खंजरों से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। मैं एक लम्हे को भी उस खौफनाक रात को नहीं भूला हूँ। मैं जब तक उन लोगों को जहन्नम में नहीं पहुंचा दूंगा मेरे इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। समीना बोली, इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर इस दलदल में आगे बढ़ते जाओगे? शारिक बोला, हाँ यही समझ लो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने कहा, उस वकील वाले मामले में तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी पड़ेगी। समीना चौंक गई, बोली, क्या मतलब, क्या तुम मुझे भी इस आग में घसीटना चाहते हो? शारिक ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो समीना को समझाने लगा कि उसे क्या करना होगा। समीना ने पूछा, क्या तुम उसे यहाँ लेकर आओगे? उसकी आंखों में खौफ का हल्का सा तासुर था। शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, उसके लिए कोई और जगह तलाश कर लूंगा। वो देर तक उस मौजू पर बहस करते रहे। समीना उसे समझाने की कोशिश करती रही लेकिन शारिक किसी तरह भी झुकने को तैयार नहीं था। समीना सुबह 7:30 बजे कॉलेज चली गई। उसने घर की एक चाबी शारिक को दे दी थी ताकि बाद में उसे कहीं आना जाना हो तो परेशानी ना हो। शारिक 9 बजे घर से निकला, गलियों में होता हुआ धोबी घाट पहुंच गया। नशेब में वाक़े उस मैदान में धोबी घाट हुआ करता था लेकिन अब यहाँ खेल का मैदान बना दिया गया था। पूरे मैदान में सब्ज मखमली घास बिछी हुई थी। वो दूसरी तरफ सीढ़ियां चढ़कर सड़क पर आ गया। सड़क की दूसरी तरफ रेज होटल था। वो होटल के सामने एक रक्शे पर बैठकर पीपल्स कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया। पीपल्स कॉलोनी में डी ग्राउंड से होते हुए गौसिया दरबार के करीब रक्शे से उतरकर वो इधर उधर देखते हुए पैदल चलने लगा। उस तरफ जरा आगे एक टेक्सटाइल मिल की ऊंची दीवार का अकबी हिस्सा था। कुछ जमीन वीरान पड़ी थी और कुछ प्लॉटों पर मकान जेर तामीर थे।
लेकिन किसी जगह काम नहीं हो रहा था। लगता था किसी वजह से उन मकानों की तामीर अधूरी छोड़ दी गई थी। शारिक घूम फिर कर उन अधूरे मकानों को देखता रहा। मिल की दीवार के करीब अंदर की तरफ उसे एक मकान पसंद आ गया। उस मकान के 3 कमरे बने हुए थे। खिड़कियों और दरवाजों के चौखट भी लगाए गए होंगे, मगर लोग उन्हें उखाड़ कर ले जा चुके थे। शारिक ने उन रास्तों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया और वापस डी ग्राउंड की तरफ चलने लगा। कुछ ही देर के बाद उसे एक रक्षा मिल गया। वो घर जाने की बजाय कचहरी बाजार के मोड़ पर उतर गया और घंटा घर की तरफ चलने लगा। घंटा घर के चौक पर एक बुक स्टॉल के सामने वो रुक गया। अखबारात सामने टंगे हुए थे। उसने एक अखबार खरीद लिया और जैसे ही अखबार को सीधा किया, पहले सफ़े पर कदरे नीचे एक तस्वीर देखकर चौंक गया। ये चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तस्वीर के साथ ही एक 2 कॉलमी सुर्खी थी। लाहौर के डीएसपी के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। शारिक वहीं खड़े खड़े वो खबर पढ़ने लगा। उसके ख्याल में खबर बड़ी दिलचस्प थी। अशफाक नामी जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, उसका ताल्लुक हीरा मंडी में मनशियात फरोख्त करने वाले एक गिरोह से था। चंद साल पहले डीएसपी ने, जब वो इंस्पेक्टर था, अशफाक नामी उस शख्स को मनशियात फरोशी और एक शख्स को चाकू मार कर शदीद जख्मी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और अदालत से उसे 4 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। जेल से रिहा होने के बाद अशफाक नामी वो शख्स कुछ अरसा गायब रहा और मंजर आम पर आने के बाद उसने एक बार फिर मनशियात का धंधा शुरू कर दिया। उसके साथ ही वो डीएसपी से इंतकाम लेने के लिए मौके की ताक में रहा और फिर मौका मिलते ही उसने अपने साथियों की मदद से डीएसपी को अगवा किया और कई रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे मुर्दा समझकर सड़क पर फेंक दिया। लेकिन बाद में पता चला कि डीएसपी जिंदा है, तो उसने डॉक्टर का भेस बदल कर अस्पताल में डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम तालीम याफ्ता है, लेकिन आवारा किस्म के दोस्तों की सोहबत में रहने से गलत रास्ते पर चल निकला था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने न सिर्फ डीएसपी के कत्ल का एतराफ कर लिया है, बल्कि और भी बहुत सी संगीन वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ किया है। खबर पढ़कर शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पुलिस ने न जाने किस बेगुनाह को डीएसपी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा था और लुत्फ की बात तो ये थी कि उससे एक नाकर्दा जुर्म का एतराफ भी करवा लिया था। एक लिहाज से पुलिस की ये कार्रवाई शारिक के हक में बेहतर थी। इस तरह वो शुबे की जद से निकल गया था। उसने अखबार तह करके हाथ में पकड़ लिया और इधर उधर देखने लगा। दाएं तरफ मुर्ग पुलाव की दुकान थी। पुलाव की खुशबू से उसे भूख का एहसास होने लगा और वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान छोटी थी, अंदर बैठने की जगह नहीं थी। वो बाहर एक बेंच पर बैठ गया। जब वो घर पहुंचा तो 2:30 बजने वाले थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद समीना भी पहुंच गई। धूप से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने चादर उतार कर मेज पर फेंक दी और पंखे के नीचे कुर्सी पर बैठ गई। तांगे का स्टॉप वहां से काफी दूर था और वहां तक उसे पैदल आना जाना पड़ता था। बिलाखिर समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, क्या सोचा है तुमने शारिक? शारिक ने पूछा, किस सिलसिले में? समीना बोली, वही वकील वाला मामला। शारिक बोला, मेरा ख्याल है कि वो प्रोग्राम तो हमने रात को ही फाइनल कर लिया था। समीना ने उसे घूरा। बोली, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना इरादा नहीं बदला। शारिक ने कहा, मैं जो फैसला करता हूँ बहुत सोच समझ कर करता हूँ। मैंने अपने दुश्मन को बड़ी मुश्किल से तलाश किया है, उसे कैसे माफ कर सकता हूँ? समीना गहरा सांस लेकर रह गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, अपने दुश्मन को माफ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी है। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। तुम अगर इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकती तो इनकार कर दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। समीना बोली, मुझे इनकार नहीं। तुम्हारे लिए मैंने इतनी जिल्लत उठाई है, थाने तक हो आई हूँ, अब क्या रह गया है? शारिक बोला, ठीक है, हम 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। और फिर ठीक 8 बजे वो घर से निकलकर धोबी घाट की तरफ जा रहे थे। शारिक रास्ते में उसे समझा रहा था, सलमान को पहचानने में तुम्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। उसके दोस्त का नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सलमान उसे मलिक साहब कहकर मुखातिब कर रहा था। मलिक ने कहा था कि वो उस लड़की के शौहर को भेज देगा, लेकिन तुम कोई बहाना बनाकर कहोगी कि तुम्हारा शौहर नहीं आ सका, इसलिए तुम खुद उसे लेने के लिए आई हो, ताकि घर में बैठकर इत्मीनान से बात की जा सके। समीना बोली, मुझे डर लग रहा है शारिक, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? शारिक बोला, तुम चादर इस तरह ओढ़े रहना कि कोई दूसरा तुम्हारा चेहरा न देख सके। धोबी घाट के दूसरी तरफ सड़क पर उन्हें रक्षा मिल गया। रक्षा कोहिनूर मिल के गेट के सामने पीपल्स कॉलोनी की सड़क पर मुड़ गया। डी ग्राउंड शुरू होते ही शारिक ने रक्षा रुकवा लिया और ड्राइवर को पैसे देकर रुखसत कर दिया। वो दोनों सड़क से हटकर घास के मैदान में चलने लगे। सामने शॉपिंग एरिया बरकी रोशनियों से जगमगा रहा था। शारिक एक जगह रुक गया। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सामने रेस्टोरेंट है, लॉन में मेजें कुर्सियां बिछी हुई हैं, सलमान वहीं बैठा होगा, नोकदार दाढ़ी और तवेले जैसी खमीदा नाक।
यही उसकी शनाख्त है, तुम उसे लेकर इस तरफ आओगी। उसने पार्क में एक तरफ इशारा किया। मैं वहां इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। समीना बोली, मुझे डर लग रहा है शारिक। उसके लहजे में खौफ था। शारिक बोला, डरने की कोई बात नहीं है, तुम किसी को कत्ल करने नहीं जा रही हो, बस उसे अपने साथ लेकर आना। तुम उसे बताओगी तो वो फौरन ही तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। अब जाओ, कहीं वो उठ कर चला न जाए। समीना छोटे छोटे कदम उठाती हुई रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगी। उसका दिल खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो जिस शख्स को बुलाने जा रही है उसका हशर क्या होगा। शारिक के सर पर खून सवार था और वो एक आदमी को मौत के घाट उतारने में उसकी मददगार बन रही थी। वो ये भी जानती थी कि अगर पकड़े गए तो उसका अपना अंजाम क्या होगा, लेकिन वो नताइज से बेपरवाह हो गई थी। शारिक ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया था और वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गई थी। जब वो होटल के सामने लॉन के करीब पहुंची तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो रुककर इधर उधर देखने लगी। लॉन में तकरीबन तमाम ही मेजें भरी हुई थीं। सिर्फ एक मेज ऐसी थी जिस पर एक आदमी अकेला ही बैठा हुआ था। शारिक के बताए हुए हुलिये के मुताबिक समीना को उसे शनाख्त करने में वाकई कोई दुश्वारी पेश न आई। वो सलमान एडवोकेट था। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसकी मेज के करीब पहुंच गई। उसने झिझकते हुए पूछा, आप सलमान अंकल हैं? सलमान ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, हाँ मेरा नाम सलमान ही है, लेकिन तुम कौन हो बीबी? समीना की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, चेहरा चादर में छुपा हुआ था। समीना बोली, मैं राबिया हूँ। मलिक साहब ने मेरे शौहर से कहा था कि आज इसी जगह आपसे मिल ले, लेकिन शाम को वो साइकिल से गिर गया, उसकी टांग में चोट आ गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। वो जायदाद वाला मसला है। सलमान बोला, ओह समझ गया, किस्सा क्या है? समीना ने कहा, यहाँ नहीं अंकल, मैं कभी इस जैसी जगह पर नहीं आई, आपको जहमत तो होगी, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सलमान बोला, ओ हाँ, मलिक साहब ने बताया था कि तुम्हारा घर गौसिया दरबार के करीब है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए सलमान उठ गया। उसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और समीना के साथ रेस्टोरेंट के लॉन से निकलकर सड़क पर आ गया। वो कुछ देर तक सड़क पर चलते रहे, फिर समीना डी ग्राउंड वाले पार्क में दाखिल हो गई। पार्क में कहीं कहीं लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी खेल रहे थे। वो दोनों पार्क से निकलकर दूसरी सड़क पर पहुंच गए। सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियां थीं। समीना चलते हुए इधर उधर देख रही थी। उस वक्त उसके दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई थी। वो सड़क पर तकरीबन 50 कदम चले थे कि अचानक ही झाड़ियों से एक साया निकलकर उनके सामने आ गया। वो शारिक था। उसके हाथ में पिस्तौल था। शारिक को गुर्राया, खामोशी से चलते रहो, मुंह से कोई आवाज निकालने या भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उसने पिस्तौल की नाल सलमान के पहलू से लगा दी। सलमान बदहवास हो गया। कौन हो तुम? शारिक ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचान सके, लेकिन मैं वो हूं जिसके खौफ से तुम लाहौर से भागकर यहाँ छुपे थे। सलमान हकलाया। शारिक बोला, बिल्कुल ठीक, मैं शारिक हूँ जिसके माँ बाप को तुमने कत्ल करवाया और जिसे अपने माँ बाप के कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया, जिसके घर को जलाकर तुमने राख कर दिया। उस रोज तो तुमने मुझे पहचान लिया था जब लोहारी गेट पर हमारा आमना सामना हुआ था। तुम जान के खौफ से लाहौर छोड़कर भाग गए, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को नहीं भूला। डीएसपी को ठिकाने लगाने के बाद मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी और बिलाखिर तुम्हें तलाश कर ही लिया।